हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुक्राफ्ट बाय कनिका। मैं आपको इस सब्जेक्ट के रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम्स के टाइम आपकी हेल्प करेंगे, मैं आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाकर दूंगी ताकि आप कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सकें। जिसमें आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स दूंगी जिससे आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। अगर आप बिना टेंशन अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। Explain with examples how gender stereotype are persisted in peer group and explain. So guys, stereotypes क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। stereotypes वो होते हैं जो कि सोसाइटी के कलेक्टिव नॉलेज और उनके आइडियाज़, रिलीजन को लेके, किसी कस्टम को लेके एक धारणा बना लेते हैं, यानी कि जजमेंट करते हैं बिना उन्हें जाने या फिर कोई कलेक्टिव नॉलेज को लेकर, फिर चाहे वो नॉलेज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ज़्यादातर ये नॉलेज जेंडर बेस्ड बनाई जाती है, यानी कि आदमियों और औरतों के बीच में जो फ़र्क किया जाता है, उनको कैसे सोसाइटी में रहने के तरीके उनके कल्चर, उनके बिहेवियर पे उनको जज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से। इंट्रोडक्शन। स्टीरियोटाइप्स occurs all the time in society. People stereotype others for many reasons. Individuals get stereotyped because of their gender. Social psychologists feel that the stereotype is one part of an individual's social knowledge. Social psychologists define a stereotype as being a cognitive structure containing the perceiver's knowledge, beliefs and expectancies about some human social group. Next आ जाता है meaning of stereotypes. Stereotypes are representatives of a society's collective knowledge of custom, myth, ideas, religion, and sciences. It is within this knowledge that an individual develops a stereotype or a belief about a certain. इसमें जो stereotypes है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो उनकी धारणा है, जो उनकी कलेक्टिव नॉलेज है अबाउट आइडियाज़, उनके रिलीजन, साइंसेस, कस्टम्स के बारे में। इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं जो कि मैंने ढूंढ के इम्पोर्टेंट नोट्स इसके पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है सोशल नॉलेज। सोशल साइकोलॉजिस्ट फील दैट द स्टीरियोटाइप इज वन पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल सोशल नॉलेज. एज अ रिजल्ट ऑफ देयर नॉलेज द स्टीरियोटाइप हैज एन इफेक्ट ऑन देयर सोशल बिहेवियर. सेकंड है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. Social psychologists define a stereotype as being a cognitive structure containing the perceiver's knowledge, beliefs, and expectancies about some human social group. Third point है influenced by stereotypes. An individual is influenced by stereotypes that he and she receives from parents, peers, teachers, political and religious leaders, and the mass media. Fourth point है positive और negative. Stereotypes can be positive or negative, but they rarely communicate accurate information about others. ये चारों पॉइंट stereotypes पे जो बेस्ड हैं, इनका बेसिक ये है कि जो सोशल नॉलेज होती है, उनके बिलीव्स होते हैं, इन्फ्लुएंस कहाँ से होते हैं वो, और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स पे बिहाफ पे ये जज करते हैं, सोसाइटी में stereotypes पैदा करते हैं. Next है meaning of gender stereotypes. It is simplistic generalizations about the gender attributes, differences and roles of individuals or groups. इसके point है based upon sex. Gender role stereotyping occur when a person is expected to enact a series of norms or behavior based upon their sexes. Second है biological differences between girls and boys. Men are physically stronger, less resilient, have greater spatial, numerical and mechanical abilities, and tend to see the world in terms of objects, ideas and theories. Women on the other hand mature physically and psychologically at an earlier stage, more nurturing, have higher and more precocious verbal skills, see the world in personal, aesthetic and moral terms. सो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल के, उनके सेक्स के बेस्ड पे उनको जो स्टेरियोटाइपिंग होती है वो सोसाइटी में की जाती है.
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है तो उसको स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर कोई फीमेल है तो उसको नर्चरिंग और केयरिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है द अर्ली जेंडर बायस एक्सपीरियंसेस दैट चिल्ड्रन एनकाउंटर कैन शेप देयर, इसके पॉइंट्स हैं एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स रिलेटेड टू देयर डेवलपमेंट, एक्सेस टू एजुकेशन क्वालिटी, participating in the corporate work world as well as stifling their physical and psychological well-being। इसमें बताया है जो चिल्ड्रन की अर्ली स्टेजेस होते हैं, जो उसका चाइल्डहुड होता है, उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे इनका जो एडल्टहुड होता है वो शेप लेता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। फर्स्ट, children begin to form concepts of gender beginning around the age 2, and most children know if they are boy or girl by the age of 3. Between the ages of 3 and 5 years, children develop their gender identity and begin to understand what it means to be a male or female. ये 2 पॉइंट्स में बताया गया है। जो एक बच्चा है 2 साल का, वो स्टार्टिंग से जेंडर की पहचान करने लग जाता है, और 3 से 5 साल की उम्र में बच्चा मेल और फीमेल का मतलब क्या होता है ये समझना शुरू हो जाता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो मेल है या फीमेल है। थर्ड पॉइंट है almost immediately after becoming gender aware, children begin developing stereotypes. These stereotypes they apply to themselves and others. और जैसे ही वो अपने जेंडर की पहचान करने लगता है वैसे वो स्टीरियोटाइपिंग स्टार्ट कर देता है, और वो चीज़ वो खुद पे भी अप्लाई करता है और सोसाइटी पे भी। फोर्थ पॉइंट है become rigidly defined between 5 and 7 years of age, making the preschool years a critical period to deal with gender stereotypes. इसमें जो बच्चा 5 से 7 साल की उम्र में होता है तब वो प्री स्कूल के उन ईयर्स में क्रिटिकल पीरियड से जेंडर स्टीरियोटाइप डील करता है। नेक्स्ट है 4 एग्जांपल्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स। Women are often expected to be passive and submissive, while men are usually expected to be self-confident and aggressive. Second point है domestic behaviors. Caring for children is often considered best done by women, while household repairs are often considered best done by men. Third point है occupations. Until very recently, most nurses and secretaries were usually women, and most doctors and construction workers were usually men. Fourth point है physical appearance. Women are expected to be small and graceful, while men are expected to be tall and broad-shouldered. अगला टॉपिक है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप परसिस्टेड इन पीयर ग्रुप। जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे परसिस्ट कैसे करते हैं पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है, जो हमारे बचपन में जो हमारे ग्रुप होते हैं दोस्तों के, जो सेम एज में होते हैं और सेम जेंडर में होते हैं कई बार, या डिफरेंट जेंडर में होते हैं, जो बेसिकली हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, उनको पीयर ग्रुप कहा जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट है पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, जो हमारा चाइल्डहुड में जो हमारा सेम एज का हमारा ग्रुप होता है सोसाइटी में, उसका प्रभाव हम पे कैसे पड़ता है। एज चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप, फर्स्ट द जेंडर स्टीरियोटाइप दे आर एक्सपोज्ड एट होम। सेकेंड, व्हेन चिल्ड्रन मूव into the larger world of friends and school, many of their ideas and beliefs are reinforced by those around them in the same age. Second है gender based interactions. Peer group influence is strong. Boys and girls have different styles of play and interactions from one another. Boys choose more rough and tumble play. Girls enjoys having tea parties with teddy bear, and boys find this style of play boring. Third point है share common interest. Members of peer group share common interest which they can't share with adult in the family. For example, fashion trends, celebrities, consumer goods, secrets, fantasies, etc. Fourth point है learn how to form relationships. Children learn how to form relationships on their own. The skills and abilities children learn from their friends are different for boys and girls. जो चिल्ड्रंस होते हैं वो जो रिलेशनशिप बिल्ड करना वो खुद ब खुद सीखते हैं अपने एज ग्रुप से, अपने पीयर ग्रुप से। एंड जो स्किल्स एंड एबिलिटीज़ बच्चे सीखते हैं, चिल्ड्रन सीखते हैं अपने फ्रेंड्स से, वो डिफरेंट होती हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में। जैसे बॉयज़ का प्ले गेम्स होता है थोड़ा रफ, एंड गर्ल्स का प्ले गेम होता है थोड़ा सॉफ्ट।
सो एंड में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन के बिना हमारा आंसर कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। सो आप कंक्लूजन, आप अपने आंसर में से कोई भी लाइंस पिक कर सकते हैं या फिर वो भी ले सकते हैं जो मैंने लिखी है। अगर आप इस आंसर को एज इट इज़ जैसे मैंने किया है वैसे तैयारी करेंगे तो हम 100% श्योर आपके अच्छे नंबर आएंगे। सो कंक्लूजन है, स्टीरियोटाइपिंग अकर्स ऑल द time in society. Stereotypes are not always inherently negative or positive. Gender role stereotyping occur when a person is expected to enact a series of norms or behaviors based upon their sex. So guys, इस क्वेश्चन में इतना ही है। तो अगर आपको कुछ समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर कमेंट्स में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो मेरे लिए और भी इजी हो जाएगा आपके लिए वीडियोस बनाना कि आपको मेरी बात कहाँ तक समझ में आ रही है, कहाँ तक नहीं समझ में आ रही है। एंड जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी मैं आपको ज़रूर ट्राई करूँगी समझाने की। सो गाइस, यूनिट 1 में आज के चैप्टर में यही है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, जितनी जल्दी हो सके। मैं यूनिट 1 आज ट्राई करूँगी कंप्लीट करने का आपका इस वीक में। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं वुमेन स्टडीज़ पे, वुमेन एम्पावरमेंट्स पे। थैंक यू गाइस।